اور ابھی ابھی شہزادہ گلے گلشن ولایت عمرہ کی ادائیگی سے آئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ زائر جب آتا ہے تو اس کے چہرے کی رونق اور ہی ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ جب لوٹ کے آؤں گا مدینے کے سفر سے، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا۔ تو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، پیر سید حسین محمود شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور جلوس کے شرحاء سے مخاطب ہوتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ برادران اسلام و سامعین محترم، آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر جلوس کے ساتھ ساتھ چلنا، ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم میلاد منا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میلاد کسے کہتے ہیں۔ میلاد کسے کہتے ہیں تو سنیے، میلاد اسے کہتے ہیں جس میں میرے حضور کی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس ایک منٹ، توجہ میری طرف فرمائیے گا۔ میں چند منٹ کی حاضری پیش کروں گا، اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو جائے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میلاد اسے کہتے ہیں جس میں میرے حضور کی بات ہو، یا اگر اس کی میں دوسری ڈیفینیشن کروں تو میلاد اسے کہتے ہیں جس میں میرے مصطفیٰ کی ولادت کی بات ہو، جس میں میرے مصطفیٰ کی بعثت کی بات ہو، جس میں میرے مصطفیٰ کے سینے کی بات ہو، پسینے کی بات ہو، عینین کی بات ہو، رجلین کی بات ہو، بس بات گنبد حضرہ کے مکین کی ہو، اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے آقا، اے میرے حبیب، ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جو میرا ولی بننا چاہتا ہے، جو میرا دوست بننا چاہتا ہے، جو میرے قریب ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے صرف ایک رستہ ہے، فاتبعونی، وہ آپ کا ہو جائے، وہ آپ کے قدموں کو تھام لے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی شریعت کے تابع ہو جائے۔ جب وہ آپ کا ہو جائے گا، آپ کا مقتدی بن جائے گا، آپ کا حبیب بن جائے گا، یحببکم اللہ۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، جب وہ آپ کا بن جائے گا، یحببکم اللہ، اللہ اسے خود اپنا پیارا بنا لے گا۔ اور آپ نے یہ ایک حدیث سنی ہوگی کہ خدا کی طرف ایک قدم جاؤ، خدا تمہاری جانب 10 قدم بڑھے گا۔ جب میں نے یہ حدیث کو سنا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ ایک قدم کیا ہے۔ تو میں نے وہ قدم قرآن سے ڈھونڈنا شروع کیا، تو قرآن نے مجھے پھر وہی بتایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بارگاہ مصطفیٰ نے ایک قدم چل گیا، خدا تعالی تمہارے قریب 10 قدم چل کر آئے گا۔ تو کہنا یہ پڑے گا کہ محمد محمد پکارے چلے جا، یوں ہی زندگی کو سوارے چلے جا، ایسی محبت
आका की तुझ पे कि हर चीज को उन पे वारे चले जा, और खुदा की कसम हर मुसीबत टलेगी, खुदा की कसम हर मुसीबत टलेगी, उन्हीं को मुसलसल पुकारे चले जा। और देखिए आज हम मिलाद मना रहे हैं, हजूर के आमद का जुलूस निकाल रहे हैं, हजूर की खुशियां मना रहे हैं। हम सिर्फ एक ही रात के मिलाद के कायल नहीं हैं, हमें चाहिए कि हम सारी जिंदगी हजूर का मिलाद मनाएं, सारी जिंदगी हजूर पर दुरूद भेजें, सारी जिंदगी उनकी शरीयत के ताबे रहें। और याद रखिए कि आज हम जुलूसों पर जो झंडे लगा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम दिल के एक एक कोने पर हजूर के नाम का परचम लगाएं, हजूर के नाम की झंडी लगाएं और अपने अंदर इश्क को बेदार करें, ऐसे इश्क को बेदार करें जो सैयदना सदीक़ अकबर के दिल में था कि जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, हजूर आते हैं तो अपनी नमाज को तोड़ देते हैं। आज लोग कहते हैं कि हजूर का नाम दिल में आ जाए तो नमाज टूटती है। देखो, ना ये सहाबा का अकीदा था, ना ये अहले बैत का अकीदा था। सहाबा और अहले बैत ने हमें यह बताया कि जब जान लिया कि हजूर आ गए तो काबे से मुंह फेर कर काबे की तरफ कर लिया जाए। तो सैयदना सदीक़ अकबर ने के अमल ने हमें यह बताया कि वो नमाजी जिसके दिल में मेरे मुस्तफ़ा का अदब नहीं, वो नमाजी जिसके दिल में मेरे मुस्तफ़ा की इश्क नहीं, वो नमाजी जिसके दिल में मेरे मुस्तफ़ा की उल्फत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार देंगे, क्योंकि ऐसी नमाजें इबादत खुदा बंदी का हक ही अदा नहीं कर सकती। तो सैयदना सदीक़ अकबर के अमल ने हमें यह बताया कि कोई ते हयाती दा मयार होना चाहिए, कोई ते हयाती दा मयार होना चाहिए, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए। सानू यारे गार ने दसे आए लोगों के सब कुछ सोने तू निसार होना चाहिए। और देखिए सहाबा की जो इबादत की बुनियाद थी वो रसूलुल्लाह की जात थी। आज हम नात पढ़ लें तो लोग कहते हैं कि इसके सबूत में आयत लाओ, अपने अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाएं तो लोग कहते हैं कि इसके सबूत में आयत लाओ, अपनी झोलियों को फैलाकर या मोहम्मद या रसूलुल्लाह के नारे लगाएं तो लोग कहते हैं कि इसके सबूत में आयत ले आओ। लेकिन कोई उनसे भी पूछे ना, हम तो आयत भी पेश कर सकते हैं, अहदीस भी पेश कर सकते हैं, लेकिन कोई उनसे भी पूछे ना जो हजूर के लुआब को भी चाट लेते थे, उनसे भी कहो ना कि इसके सबूत में आयत लाओ कि जब हजूर आते थे तो अपनी नमाजों को तोड़ दिया करते थे। अरे उनसे भी कहो ना कि इसके सबूत में आयत लाओ। बुखारी शाहिद है कि नमाज की हालत में सहाबा हजूर के चेहरे की तरफ टिकटिकी बांध कर देखते थे। अरे उनसे भी कहो ना कि इसके सबूत में आयत लाओ। खुदा की कसम सहाबा का भी यही जवाब होगा, हमारा भी यही जवाब होगा कि इश्क की इबारत किताबों पर नहीं, ये तो दिलों पर लिखी जाती है। कोई पूछे ना अबू बकर से कि अबू बकर काबा उधर है, रूह क्यों पीछे कर लिया, तो अबू बकर जवाब देंगे कि तूने सिर्फ किताब पढ़ी है, तूने हजूर का चेहरा नहीं देखा। खुदा की कसम तू एक मर्तबा हजूर के चेहरे की ज़ियारत कर लेगा तो तेरी क्या मजाल थी कि उनसे अपने रूह को फेरता। तो सहाबा का यही जवाब होगा कि मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, अरे तेरे नक्श पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। और आखिरी बात अर्ज करूंगा क्योंकि मगरिब के टाइम है कि आज कुफार और कुछ लाबीज मुतहर्रिक हैं और उन्होंने अरबों खरबों डॉलर लगा दिए इस काम के पीछे कि हजूर के गुलामों के दिल से हजूर की मोहब्बत को निकाला जा सके। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, हजूर के गुलाम हजूर का मिलाद मनाते हैं, तो उन जालिमों को ये जवाब देते हैं कि जालिमों तुम्हें अपनी शोहरत पर नाज होगा, तुम्हें अपनी दौलत पर नाज होगा, तुम्हें अपनी हुक्मरानी पर नाज होगा, लेकिन ये धरती कल भी या रसूल अल्लाह कहने वालों की थी, ये धरती आज भी या रसूल अल्लाह कहने वालों की है। हम फना हो जाएंगे, तुम फना हो जाओगे, ये दुनिया फना हो जाएगी, लेकिन मेरे नबी के रहमतुल लिल आलमीन का परचम हमेशा बुलंद रहेगा, मेरे नबी के रुतबों का परचम हमेशा बुलंद रहेगा। और खुदा की कसम हम 100 बार मारकर 100 बार जिंदा हो जाएं, हमारे लबों पर एक ही नारा रहेगा और वो नारा ये रहेगा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आज जलूस के शुरका ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारा दीन भी हमारा नबी है, हमारा ईमान भी हमारा नबी है, हमारे मालिक भी हमारा नबी है। और आज जलूस के शुरका ये पैगाम दे रहे हैं कि या रसूलल्लाह, हमारे वालिदैन आपके वालिदैन पर कुर्बान, हमारे औलादें आपकी औलादों पर कुर्बान, हमारे मालो जान आपकी मालो जान पर कुर्बान। और हमारा ये अकीदा है, हमारी ये पहचान है, हमारा ये सोच है। क्या सोच है, क्या अकीदा है कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कटमरू हा जाए बदहा की हुर्मत पर। खुदा शाहिद है कि अमल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह ताला हमें इसी तरह हजूर की गुलामी में रखे, हजूर की गुलामी में उठाए और इसी तरह हजूर का मिलाद गज वज कर मनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम और गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा उन फकीरों राहगीरों सब गदाओं को सलाम। वालेहाना जो तवाफ़े रोज़ाए अक़दस करें, मस्तो बेखुद वजद में आती हवाओं को सलाम। ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। मैं दरख्वास्त करूँगा काफ़िला सलार बानी, ये ख़ानदान जो इस मरकज़ी जुलूस का बानी भी है, मखदूम शहनशाह वलायत जिगर गोशा मुजाहिद मिल्लत पीर सैयद सईद अहमद शाह साहब गुजराती, शुक्रिया भी अदा करेंगे मामून सब का और दुआ भी फरमाएँ। चूँकि वक्त अजान है, मगरब की अजान का वक़्त हुआ चाहता है, उससे पहले मैं समझता हूँ आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और मेरे आका का ये फरमान, एक घड़ी आती है जिसमें मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है। आज जुम्मा भी है, 12 रबीउल अव्वल का दिन भी है, यानी जश्न ईद मिलादुन नबी भी है। और हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फरमाती हैं वो घड़ी यही घड़ी है, मगरब के वक़्त की घड़ी है, जब सूरज गरूब हो रहा है, ये घड़ी है। तो हम सब बारगाह इलाही में और बारगाह रिसालत में अपने हाथों को बुलंद करके दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल मंजूर फरमा। जिन लोगों ने शिरकत फरमाई उनके हुस्न नीयत से बढ़कर उनको अजर व सवाब अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमा। यहाँ अंजुमन ताजरान वालों ने मोहब्बत का इज़हार किया, रास्ते में तमाम आशिकाने रसूल अपनी अपनी मोहब्बतों के फूल निचावर करते रहे। सरगोदा रोड से बड़ा जुलूस हसनैन फारूक, सईद कंबो साहब, अमर गुजर साहब और उनकी टीम लेकर आई।
या इलाही तो अलीमुन बिदाती सुदूर है, नाम लूँ तो बहुत दूर बात चली जाएगी। नूरपुर से आया, मल्लालीपुरा से आए लोग, पूरे शहर वालों ने शिरकत की। या इलाही सबकी हाजिरी को बारगाह इलाही में और बारगाह रिसालत में कबूलो मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमा, अंदरूनी बैरूनी खलफशारों से महफूज फरमा, मिल्लत इस्लामिया को एक प्लेटफार्म नसीब फरमा। या अल्लाह तूने हमें हाफिज़ कुरान और सैयद जर्नैल दिया, इसको तौफीक अता फरमा। ये न सिर्फ सियासतदानों का इंतखाब करे बल्कि जर्नैलों का, जजों का, एस्टेब्लिशमेंट का, जिसने भी पाकिस्तान का नुकसान बचाया, इनको जनरल साहब को उनका इंतखाब करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला फरमा दे, जिस मकसद के लिए ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान हासिल किया गया। आज सोमोटो इलेक्शन पर लिया जाता है, मगर अफसोस कि आर्टिकल 230 जिसके मुताबिक पाकिस्तान में इस्लाम नाफज होना था 74 के बाद 10 साल में, वो नाफज नहीं हो सका। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के हुदादात में इस्लाम का बोलबाला फरमा दे। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब का सदका इस पाकिस्तान के मकीनों को बरकत अता फरमा। आज लोग बड़े परेशान हैं महंगाई के हाल से। या इलाही तो अलीमुन बिदाती सुदूर है, अपने प्यारे महबूब का सदका इन सब को बरकत अता फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, रोजगार वालों के रोजगारों में बरकत अता फरमा। जिन जिन हजरात ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया उनके उसने नीयत से बढ़कर अजर व सवाब अता फरमा। वाफ़ुन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। भाई जिन लोगों ने दुआओं का कहा, तू अलीमुन बिदाती सुदूर है, सबकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला नूरी खैरी खल्क़िही व नूरी अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही व अहबाबिही अजमईन। तमाम मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो।